हमेशा हमेशा बचा के रखना है। बीजेपी में जुमले हैं, एक झूठ, झूठ के ऊपर झूठ। मोदी साहब तो झूठों के बादशाह है। अकेली आम आदमी पार्टी है जो महंगाई से आपको मुक्ति दिला सकती है, बेरोजगारी से मुक्ति दिला सकती है। It's a state that the BJP has been in power for 27 years uninterrupted. It is the home state of Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah. But it is also the state where the Congress has consistently scored somewhere a vote percentage that has been above 35%. A state which has largely seen a bipolar contest has a new entrant in the Aam Aadmi Party. Today is the first phase of elections in Gujarat. Welcome to the special broadcast. With me here in the studio is our managing editor Zaka Jacob. Zaka. Oh, absolutely. This is a huge contest for Gujarat, not least because of what Maria said. It's the home state of the Prime Minister and the Home Minister. But today's phase is critical for both the BJP and the Congress. Remember, in the last election, the Congress ran the BJP close and it ran it close in this phase. So I'll be interested in knowing what is happening today in Saurashtra. And Anand Narsimhan is also joining us, Zaka, and he is on ground zero. Hello, Anand. What are the newspapers saying today? I can see Brajesh ji with some newspapers. Yeah, good early morning to all our viewers and to you there in the studio, Maria and also Zaka. Maria, I know you've also been up and about in Ahmedabad and also some other parts of Gujarat. We've been bringing all the stories to our viewers and you've just air dashed back into the studio. But what we did is we took an overnight train from Ahmedabad, from Karnavati, and we've come to this historic location. The moment you see what's behind me, you'd know where we are. We are in Somnath this morning, and we said this is where Somnath also goes to polls in the first phase. And from here, through the course of the day, we will try and stop in Junagadh and also towards and end the day in Rajkot and try and get you the poll pulse in terms of how Gujarat is turning out to vote. Now, Brajesh ji is with us. Brajesh ji, why don't you just hold the mic and tell us? Maria is asking us, पूछ रही हैं कि अखबार क्या कह रहे हैं, हेडलाइन क्या है आज जैसे फर्स्ट फेज ऑफ पोलिंग हो रहा है, और उसके बाद देन विल क्विकली चैट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ सोमनाथ जी। मारिया, आपने बात की कि आज के अखबार क्या कह रहे हैं और खासतौर पे जो यहाँ के लोकल अखबार हैं, तो एक अखबार मेरे साथ है जिसमें कि लिखा हुआ है कि सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात की जो 89 असेंबली सीट्स हैं उसके लिए आज इलेक्शन हो रहा है। इसके अलावा ये भी बताया गया है किस जो फर्स्ट फेज है उसमें कितनी महिला कैंडिडेट खड़ी हैं, जैसे कि 70 है इस वक्त, साथ में 2.38 करोड़ वोटर्स जो है सो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं। ये भी साथ में डिटेल्स है कई जगहों में कि जब 2017 में जब फर्स्ट फेज का इलेक्शन हुआ था, जब 89 सीट्स के लिए, तो उसमें बीजेपी ने 48 सीट जीती थी और कांग्रेस को 38 मिली थी और इंडिपेंडेंट और अदर पार्टीज मिलकर 3 थे। तो इस तरह का है जो है पूरा का पूरा आज। लेकिन जो आप गुजरात निकलेगा वोट करने के लिए निश्चित तौर पर, क्योंकि आप देखिए पिछले कुछ वर्षों का जो ट्रेंड है, वोटर बड़ी तादाद में वोट करने के लिए आते रहे और इसमें जो है एक तरह जहां अवेयरनेस है वोटर्स के लेवल पर, वहीं पर आपको कहीं ना कहीं जो इलेक्शन कमीशन की जो मैसिव मशीनरी है और जो कोशिश की जाती है लगातार पोल परसेंटेज बढ़ाने की, उसका भी बड़ा योगदान है। तो इसलिए उम्मीद ये की जानी चाहिए कि आज एक बार फिर से जो डेमोक्रेसी का ये जो सबसे बड़ा फेस्टिवल कहते हैं उसमें लोग पार्टिसिपेट करने के लिए बड़ी तादाद में आएंगे जी। और इस सोमनाथ की एक खासियत है, बहुत साल पहले जब मैं यहाँ आया था तब ये प्रांगण नहीं था, ये गेस्ट हाउस नहीं था, ये एक्सेस नहीं था और ये सुंदर व्यू विद द सन्स रेज फॉलिंग राइट ऑन द डोम ऑफ और राइट एट द गोपुरम इफ आई मे से ऑफ द सोमनाथ टेम्पल, दिस वाज नॉट देयर। तो कहीं ना कहीं, और बीजेपी का विस्तार भी कहीं यहीं से शुरू हुआ था 90 में। आप बताएं, यू नो द हिस्ट्री बेटर। देखिए, चूंकि आप यहाँ पर हैं इस जगह पर, तो आपको जय सोमनाथ तो कहना ही पड़ेगा। और जय सोमनाथ कोई पॉलिटिकल उद्घोष नहीं है। आप ध्यान रखें कि जो भी दर्शनार्थी देश और दुनिया से यहाँ पर आते हैं उनके लिए जो है सो जय घोष जय सोमनाथ ही होता है। और ये जय सोमनाथ जो है इसका हिस्टोरिकल रिलेवेंस भी है। आपको बता दूं कि जब हैदराबाद पर जीत हासिल की थी, जब उसको इंडियन यूनियन में इंटीग्रेट किया गया था, तो जो पहला मैसेज आया था सरदार पटेल के पास, बिकॉज उस समय वो स्टेट मिनिस्टर भी थे अपार्ट फ्रॉम द होम मिनिस्ट्री को हेड करने के, तो उनके मुंह से पहला शब्द निकला था जय सोमनाथ। तो और जहां तक आपने पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस की बात की, पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस तो बाद में आता है, लेकिन भारत की जो एक तरह से कह सकते हैं कि सांस्कृतिक अस्मिता
का सबसे बड़ा प्रतीक जो है वह यह सोमनाथ है। आपको ध्यान होगा कि जब देश आजाद हुआ था, ये मंदिर इस शक्ल में नहीं था। यहाँ पर टूटा फूटा विखंडित और जो कि इतिहास में आधे दर्जन बार विदेशी आक्रांताओं के तरफ से तोड़ा गया था, गजनवी से लेकर जो है मुगल काल तक, उस सोमनाथ का पुनर्निर्माण का संकल्प लिया सरदार ने। जब वो जूनागढ़ पर विजय प्राप्त हुई, जूनागढ़ में रेफरेंडम हुआ, जूनागढ़ भारत परिसंघ में शामिल हुआ और उसके बाद से उन्होंने संकल्प लिया और उसके बाद से एक एक कर कर यह मंदिर निर्माण का काम शुरू हुआ और आज इस भव्य कंडीशन में है। आपको ये भी बता दूं कि सोमनाथ का जो ट्रस्ट है उसकी अध्यक्षता खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। इसके पहले मोरारजी देसाई जो कि उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी इसकी अध्यक्षता की थी। Former Prime Ministers have been chairman of the trust, Morarji Desai, then Prime Minister Narendra Modi now, and interestingly, it was President Dr. Rajendra Prasad who came for the Shilanyas, didn't he?